Find the cost of erecting a fence around a square field whose area is 9 hectares. If fencing costs rupees 35 per meter. Okay. First of all, there is a square field whose area is 9 hectares. What is this hectares? And what is the relationship between the hectare and the meter? ठीक है. First of all, 9 hectares is equal to 9 hectometer square. 9 hectare is equal to 9 hectometer square, and there is a very famous relationship between all the, you can say, units of length, which is King Henry died, mother didn't cry much. King Henry died, mother didn't cry much. King stands for kilo, hecto, deca, meter, deci, centi, milli. Kilo, hecto, deca, meter, deci, centi, milli. Okay. Now, I want to convert from hectometer square to meter square, and that is 2 steps of conversion: hectometer to decameter and decameter to meter. Okay. So, whenever I want to convert from hectometer to meter, I multiply by 100. Why by 100? Because I am converting from bigger quantity to smaller quantity. 2 steps down. 2 steps down means from हेक्टो टू डेका टू मीटर. ओके. इसके लिए मैं 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. 100 में आगे 2 ज़ीरो है. ये यूनिट कन्वर्जन के बारे में मैं बार बार बताता रहूँगा अलग अलग चैप्टर में. इस चैप्टर में इतनी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वी हैव जस्ट गॉट द क्वेश्चन, सो आई एम डिस्कसिंग इन ब्रीफ, नॉट इन डिटेल. बट remember, I don't want to convert from hectometer to meter. I want to convert from hectometer square to meter square. So in that case, I will multiply it by 100 square. So 9 hectometer square is equal to 9 into 10,000. 100 square is 10,000 meter square, which is 90,000 meter square. So therefore, the area of the field is equal to 90,000 meter square. Okay, I've got the area. Now I have to do fencing along this field, and fencing is done along its sides. Remember, the fencing is done along the sides. So for finding the total length of the fencing or total cost of the fencing, I need to find the side of this square field. Okay, so how to find the side of the square field? It's very easy. I know the formula. Area of square is equal to side square. Small a is the abbreviation for side, and area is 90,000, which is equal to a square. Therefore, a, that is side, is under root of 90,000. 90,000, you want to take out square root, this is very simple. Okay, you can write it as under root of 9 times 10,000. इसको नोट कर लेना, because ये टेक्निक बहुत यूजफुल है. This can be written as under root of 9 times under root of 10,000, that is 3 times 100. 9 का रूट 3 है, 10,000 का रूट 100 है. डायरेक्ट निकल गया, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, कोई कैलकुलेशन. सो द साइड इज 300 मीटर. नाउ आई हैव गॉट द साइड.
I have to find the length of the boundary, and length of the boundary is nothing but the perimeter. Okay, so length of boundary, which is the perimeter, which is equal to 4 times the side, which is equal to 4 times 300, which is equal to 1200 meter. Length of boundary, which is perimeter, which is 4 into the side. For square, the formula for perimeter is 4 into side. शायद तुमने कभी एरिया एंड पेरीमीटर या मेंसुरेशन ऐसा कोई चैप्टर किया है 7th में, तो तुम्हें पता होगा. ठीक है, तो यहाँ पे मुझे लेंथ ऑफ बाउंड्री मिल गई. अब मुझे क्या ढूंढना है? आई हैव टू फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ इरेक्टिंग अ फेंस, मतलब पूरा फेंसिंग का कॉस्ट. सो देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग equals 1200 times 35. Can anyone please multiply 35 12s are for me? Is it 420? 35 12s are, and then the 2 more zeros, so 42,000 will be the total cost. Please note it down. मैं आज थोड़ा बीच बीच में थोड़ा लेक्चर देता हूँ, बिकॉज मुझे लग रहा है तुम लोग को ज़रूरत है. There is a desperate need for some of you guys to bring the change in attitude, क्योंकि तुम्हारा जो एटीट्यूड है ना पढ़ाई को लेके बहुत लेड बैक है. चलता है, ठीक है, होता है, कर लेंगे. ये एटीट्यूड को बदलने की ज़रूरत है, बिकॉज यू आर द फ्यूचर ऑफ वॉट एवर वी आर राइट नाउ, ऑफ दिस कंट्री एंड दिस वर्ल्ड. और हमारी कंट्री में ऐसे घटिया लोगों की वजह से आज ये हालत हो रही है. अरे चलता है, देखेंगे, होता है. ये घटिया एटीट्यूड को चेंज करना. नहीं चलता, अब भी आना है, अब भी करना है, आज करना है, आज ख़त्म करना है. ये एटीट्यूड चाहिए, तभी हमारा कुछ हो सकता है. ठीक है, होमवर्क है, देख लेंगे, डाउट पूछ लेंगे. नहीं चलता, चलता ही नहीं. ये प्रॉब्लम एटीट्यूड का है, मैथ्स का नहीं. मैथ्स इज नॉट द प्रॉब्लम. मैथ्स तो बहाना है. यू नो, मैथ्स ऐसी चीज़ है ना, मतलब मैं इसको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ. ये तुम्हारी पोल खोलता है. तुम जो भी हो वो तुम्हें बता देता है. इट टेल्स यू व्हाट यू आर. इट शोज यू मिरर. बाकी सारे सब्जेक्ट में ऐसा नहीं होता है. दे गो ईजी ऑन यू. मैथ्स गोज हार्ड ऑन यू, बिकॉज तुम उसको लाइट लेते हो, और ये फिर तुम्हारी पोल खोलता है. तुमको मेरे साथ पढ़ते हुए आज ऑलमोस्ट 2 months होने आएंगे. 2 months कंप्लीट हो जाएंगे हमारे, और तुम बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हो. द फर्स्ट थिंग you all need to learn is commitment. तुम्हें सीखना पड़ेगा ये. यस राशि. सर आई हैव अ डाउट. एसेट वाले टाइप के क्वेश्चंस कितने मार्क्स पे आ सकते हैं? कैसे? ऐसे ये वाले? हाँ.
इट डिपेंड्स ऑन स्कूल टू स्कूल, क्योंकि इसके लिए सीबीएसई ने कोई मार्किंग वैसे डिसाइड की नहीं है। ये जो बुक है दैट इज़ आर एस अग्रवाल। तो सर अगर तो हो सकता है इसमें 2 से 3 हर एक मार्क। स्टेटमेंट लिखना जरूरी है? यस, एब्सोल्युटली, बहुत ज़रूरी है। मैंने जैसे लिखा है वैसे ही लिखना है तुम्हें। स्टेटमेंट लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम में तो स्टेटमेंट के बिना तो काम नहीं चलता है। ठीक है, लिख लिया सबने ये? नोटेड डाउन? ओके। चार लाइन में ख़त्म। इन लोग ने कन्वर्जन सीधा सीधा दिखाया है। मैंने तुम्हें ये किलो हेक्टो सब कन्वर्ट करके एक्सप्लेन किया, इसमें अपना काफ़ी टाइम और स्पेस चला गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी नोट कर लेना क्योंकि ये थोड़ा अजीब टाइप का क्वेश्चन है। What least number must be subtracted from 7250 to get a perfect square, and also find the square root of this perfect square? See, till now we have come across certain questions जहाँ पे बोला था कि what least number must be multiplied with this number or what least number should be divided from this number to make it a perfect square. याद है तुम्हें? तो फैक्टराइजेशन करते थे, फिर जो भी नंबर के फैक्टर्स पेयर में एग्जिस्ट नहीं करते थे उसकी पेयर हम लोग कंप्लीट करते थे बाय ईदर मल्टीप्लाइंग अ नंबर और डिवाइडिंग अ नंबर। तो दिस इज समथिंग डिफरेंट बिकॉज यहाँ पे बोला है व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। तो ये क्वेश्चन फैक्टराइजेशन से होगा नहीं। फॉर दिस यू हैव टू डू लॉन्ग डिविजन। ठीक है, तो आओ लॉन्ग डिविजन करते हैं। तो नंबर है 7250। सो 7250 पहले ग्रुपिंग करेंगे, 50 एक साथ, 72 एक साथ। लॉन्ग डिवीजन 7250 ग्रुप ग्रुप 72 से नज़दीक और उससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर 8 8 ज़ा 64। 72 माइनस 64 में क्या ऐड करेंगे तो 72 आता है 8, नीचे आ जाएगा 50, यहाँ पे ऐड हो जाएगा 8 8 प्लस 8 16, यहाँ पे स्पेस छोड़ेंगे, 16 के आगे एक नंबर लिखेंगे, वो नंबर से वो नए नंबर को मल्टीप्लाई करके 850 से नज़दीक पहुँचने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो 165 5 डायरेक्ट ट्राई करता हूँ मैं। 5 5 25, 2 5 6 30 प्लस 2 32, 3 5 1 5 प्लस 3 8। वाह, काफ़ी नज़दीक पहुंच गए यार। 825, तो 166 सिक्सा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 165 5 ज़ा 825 और रिमाइंडर आता है 25। ठीक है, अब ये लॉन्ग डिवीजन तो आगे नहीं बढ़ेगा क्योंकि ओके जस्ट यहाँ पे 5 ऐड करके मैं 170 ला देता हूँ। ठीक है, ये लॉन्ग डिवीजन आगे नहीं बढ़ेगा बिकॉज द रिमाइंडर हैज़ कम नॉट ज़ीरो, नॉन ज़ीरो रिमाइंडर मिली। तो नॉन ज़ीरो रिमाइंडर का मतलब क्या है कि यू हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस रिमाइंडर फ्रॉम आर गिवन नंबर टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर मिल गया हमको, ये रिमाइंडर को ही सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। Therefore, to make 7250 a perfect square, we must subtract 25 from it। हमें उसमें से 25 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। To make 7250 a perfect square, we must subtract 25 from it. Okay, therefore 7250
minus 25 equals 7225, which is a perfect square. अब क्वेश्चन आगे पूछा है वो लोगों ने कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस परफेक्ट स्क्वायर. 7225 का परफेक्ट स्क्वायर ढूंढना है. बट देर इज अ गुड न्यूज़. गुड न्यूज़ है कि तुम्हें आगे कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वी ऑलरेडी नो द स्क्वायर रूट ऑफ 7225 विच इज ओवर हियर 85. जो क्वोशंट रहता है वही स्क्वायर रूट होता है 7225 का, मतलब ये नंबर का. ठीक है. सो देयरफॉर तुम लिखोगे स्क्वायर रूट ऑफ 7225 इज 85. दैट्स इट. ठीक है. तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जहां पे तुमसे पूछा जाए कि फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ गिवन नंबर टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, you will do the long division, you will find the remainder, and that remainder has to be subtracted from the given number to make it a perfect square. And when you subtract the remainder, whatever number you get as the outcome, ठीक है, will be the perfect square. और उसका जो स्क्वायर रूट होगा वो तुम्हारे लॉन्ग डिवीजन का कोशंट ही होगा. ठीक है. नोट इट डाउन एवरीवन. मेरे साथ साथ लिख लिया सबने. Tanush, did you note it down? Okay. Let's go ahead and check it. Yes, 7225 स्क्वायर रूट है उसका 85, बिल्कुल सही है. ओके. ये और एक ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे थोड़ा सा यू नीड टू अप्लाई योर ब्रेन्स. फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर. Can you tell me, can anyone tell me which is the greatest number of 4 digit? 9999. Yes. Greatest 4 digit number is 9999. Is this a perfect square? We don't know. So how to find it out? Simple. Do long division. Okay, long division. 9999 ग्रुपिंग हो गया. 99 से नज़दीक और उससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है? 99 ज़ा 81. ठीक है. यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, आएगा 8, यहाँ पे आएगा 1, नीचे आएगा 99. यहाँ पे 9 ऐड करेंगे, 9 + 9 18. यहाँ पे एक स्पेस छोड़ेंगे, 18. उसके आगे एक नंबर मल्टीप्लाई करके इसके नज़दीक जाने की कोशिश करेंगे. नाउ आई सी नट में अगर यहाँ पे 189 9 जा करूँगा ना, क्योंकि 180 यस आई थिंक वही मुझे तो लग रहा है 189 9 जा. बाकी सारे छोटे नंबर होंगे. दिस इज बाय फार द फारदेस्ट आई कैन रीच. 9 9 जा 81, 8 9 8 जा 72 प्लस 8 80, और यहाँ पे आएगा 8. 9 1 जा 9 + 8 17, 1701. This is the by far largest number which we can get by multiplying 189 9 जा. So we get 1701. Okay, इनको subtract करेंगे. 9 - 1 8, 9 - 0 9, 8 - 7 1 198. So we get 198. This is your remainder. Okay. So अब मुझे पता है कि 9999 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बट मुझे ये भी पता है कि रिमाइंडर 198 को अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे उसमें से तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा. ठीक है. सो देयरफॉर द ग्रेटेस्ट 4 digit number which is a perfect square is 9999 minus 198.
कितना होगा 1, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 8, यहाँ पे आएगा 9, 9801, करेक्ट है 9801. So this is the greatest 4-digit number which is a perfect square, 9801. इसके बाद 4 डिजिट में इससे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. दिस इज द लार्जेस्ट और ग्रेटेस्ट 4 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर. सेम टेक्निक, लॉन्ग डिवीजन किया, रिमाइंडर ढूंढा, माइनस कर दिया, परफेक्ट स्क्वायर मिल गया. सो ऐसे क्वेश्चन में भी यू कैन यूज द सेम टेक्निक. Okay, let's move to the next question. What least number must be added to 5607 to make the sum a perfect square? Find this perfect square and its square root. What least number must be added to 5607 to make the sum a perfect square? Find this perfect square and its square root. अब पूछा है क्या ऐड करना पड़ेगा. इसका एक टेक्निक थोड़ा अलग है, थोड़ा ध्यान से देखो. सबसे पहले I will take 5607, group it and do its long division. फिफ्टी सिक्स से छोटा और उससे नज़दीक का परफेक्ट स्क्वायर इज 7 7 ज़ा 49. यहाँ पे आएगा 7, यहाँ पे आएगा 07, यहाँ पे आएगा 7, यहाँ पे आएगा 14, ओके. 144 4 ज़ा 576, 145 5 ज़ा. अब सबको पता है कि जहाँ पे जो नंबर मैं ऐड कर रहा हूँ उसी से मुझे उसको मल्टीप्लाई करना है. 5 5 ज़ा 25, 2 5 4 ज़ा 20, 20 प्लस 2 22, यहाँ पे आएगा 2, 5 1 ज़ा 5 प्लस 2 7, 725 बड़ा नंबर आता है. मतलब आई विल गो विद 144 4 ज़ा 576. 7 माइनस 6 1, यहाँ पे 10, यहाँ पे आएगा 6, 10 माइनस 7 इज 3, 6 माइनस 5 इज 1, 131. ये तो आगे होगा नहीं कुछ, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है. दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. देखो ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ पे मुझे पूछा है कि व्हाट मस्ट बी एडेड टू दिस नंबर टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर. सब्ट्रैक्टेड तो मुझे पता है बट एडेड मुझे नहीं पता है. ठीक है. सो तुम कुछ स्टेटमेंट्स लिखोगे. क्लियरली 5607 is greater than 74 square and smaller than 75 square. ये जो नंबर है ये 74 स्क्वायर से बड़ा है, क्योंकि 5607 में से जब 131 माइनस करेंगे तब 74 स्क्वायर मिलेगा. और 75 कि इसका कंसेक्यूटिव नंबर 74 के बाद आने वाला नंबर कौन सा है 75, तो 75 स्क्वायर से छोटा है. ठीक है. Therefore we'll find the square root, we'll find the square of 75. 75 स्क्वायर इज इक्वल टू, कोई प्लीज मुझे बता सकता है 75 का स्क्वायर कितना है? 5625.
5625, is it? Please confirm someone. Sir, 5625. ओके 5625 ये है 75 का स्क्वायर और मेरा नंबर है 5607, राइट? तो मुझे पता है 5607 में क्या ऐड करके उसको 5625 बनाना है। देयरफॉर 5625 माइनस 5607 इज इक्वल टू कितना आएगा? 18 आएगा, ठीक है? सो 18 मस्ट बी एडेड टू 5607 to make it a perfect square. 18 must be added to 5607 to make it a perfect square. Find this perfect square. Therefore 5607 plus 18, which is equal to 5625. This is your perfect square and its square root. We already know it. Square root of 5625 कितना है? 75. ठीक है? So the least number which must be added to 5607 to make it a perfect square is 18. 18 must be added, and after adding 18 we get 5625 जिसका root 75 है. That's how you do this one. Right? Same way they have written 5607 74 स्क्वायर और 75 स्क्वायर के बीच में आता है, तो कौन सा नंबर ऐड करना है? 75 स्क्वायर माइनस 5607, दैट इज 18. सो 5625 हमारा रिक्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर है और उसका स्क्वायर रूट 75. अब ये उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है. फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स which is a perfect square and find the square root of this number. Can you tell me what is the least number of 6 digits? 6 digits का least number कौन सा है? 1000. सही है ना? So that is 1 lakh, right? 100,000, 1 lakh. Now, is this a perfect square? I don't know. So I have to find it out. How do I find it out? I do the grouping and I do the long division. 1 0 0 0 0 0. 10 से छोटा और उससे नज़दीक का परफेक्ट स्क्वायर 3 3 9. यहाँ पे आएगा 1 0 0 नीचे आएंगे प्लस 3 हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 6. 61 1 ज़ा होगा, 62 2 ज़ा तो वैसे ही 120 से ज़्यादा होता है. सो 61 1 ज़ा 61, यहाँ पे आएगा 39, 2 0 और नीचे आएंगे, यहाँ पे आएगा 1 ऐड हो जाएगा. 61 प्लस 1 62, 62 के आगे एक नंबर ऐड करना है मुझे. सो 626 6 डायरेक्टली ट्राई करता हूँ 3900 के नज़दीक जाने के लिए. 6 6 36, 3 6 2 18, सॉरी 6 2 12, 12 प्लस 3 15, 1 6 6 36 प्लस 1 37, 3756. This is very much closer to 3900 and also smaller than it. Would you like to try 627 7 जा? ट्राई करो. 7 7 49, 4 14 plus 4 18, 42 plus 1 43, which is bigger. So we'll reject this. 626 6 3756. Subtract it. यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा,
यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक है। 150. ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1, 144, 144 इज द रिमाइंडर। बट वी वॉन्ट द लीस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट। अगर मैंने रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट किया 1 लाख में से तो 5 डिजिट नंबर बन जाएगा। वी वॉन्ट अ 6 डिजिट नंबर। सो वी नो वन फैक्ट, फिर से वही चीज़ जो तो पहले 144 को ऐड कर देंगे. नहीं कर सकते, नहीं कर सकते मुन्ना। देखो करना क्या है यहाँ पे, 1 लाख, 1 lakh is clearly between two numbers. It is greater than 316 square and smaller than 317 square. ठीक है, therefore the number which must be added to 1 lakh to make it a perfect square is equal to 317 square minus 1 lakh. ये तुम्हें करना है। 317 का स्क्वायर ढूंढो और उसमें से 1 लाख को माइनस करो। कम ऑन गाइस, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने वही किया था, हमने रिमाइंडर को ऐड नहीं किया था। वी डिड नॉट ऐड द रिमाइंडर, वी फाउंड द नेक्स्ट नंबर टू द कोशंट, कोशंट के बाद वाला नंबर ढूंढा, उसके स्क्वायर में से हमारे गिवन नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दिया। यहाँ भी वही कर रहे हैं हम लोग। सर 489 इज द आंसर। ईदर यू आर वेरी गुड in your calculation or you are using a calculator. I'm not sure. Very nice यार, 317 स्क्वायर मुझे खुद को 10 मिनट लग जाते हैं करने के लिए। आई एम नॉट गुड विथ कैलकुलेशंस, माई कैलकुलेशंस आर पथेटिक। So I want a confirmation from someone of you. 489. Can you tell me what is 317 square, madam? It is 100,489. Okay, so the difference comes out to be 489. So the least number which must be added to 1 lakh to make it a perfect square is 489. Therefore, least number of 6 digit which is a perfect square equals 1 lakh plus 489. I'm sorry, did I write 10,000? That is 100,489. This is the least number of 6 digit which is a perfect square. ठीक है, and also find the square root of this number. ठीक है, तो finally you will write, and therefore square root of 100,489 is equal to 317, which we already know. तनुष ये सब लिखना है बेटा, लिखना है ये सब। तू कुछ भी लिखता नहीं है, तू लिखने का चोर है। तेरे को लिखना पसंद नहीं है, तेरे को ज़्यादा मेहनत करना पसंद नहीं है, तू फटाफट काम करके निकल जाता है। तू स्मार्ट भी है इसलिए तू बच जाता है, तेरे को आता भी है सब कुछ, तेरा कैलकुलेशन भी ओवरऑल अच्छा है, सब कुछ सही है, बट सम थिंग्स आर टू बी डन अकॉर्डिंग टू द norms and you cannot break them. You need to note it down. You need to maintain a notebook proper.
तनिष, आहाना किधर है? आहाना सर बाहर है, कुछ काम कर रही है शायद। अच्छा अच्छा, बोला ना उसको ज़रा बाद में बात करनी है मुझे। यस सर। ओके, let's go to the next question. Hey, no next question. We have completed this part. Now I'm going to show you questions from the next part. मैंने next lesson plan बनाया ही नहीं अभी तक, मुझे लगा कि आज इसमें टाइम चला जाएगा, but we finished early, so I think we can finish the chapter today. So let's see what kind of questions are there in the next part. I'll show you on my screen, don't worry. Can you see my screen? Okay, so this next part is about square root of decimals, and it is not a big deal, बहुत easy है square root of decimals. ठीक है, फटाफट ख़त्म करते हैं इसको. पहला है root of 42.25, root of 42.25. You can see the answer also. मुझे सिर्फ method explain करनी है. Okay, so let's do square root of 42.25. अब ये पॉइंट में नंबर, इसका स्क्वायर रूट ढूंढने के लिए आई शो यू सिंपल मेथड. पहले नंबर लिखो 42.25. अब इसमें ग्रुपिंग कैसे करना है पता है? डेसिमल पॉइंट से राइट में राइट की तरफ ग्रुपिंग करना है, डेसिमल पॉइंट से लेफ्ट में लेफ्ट की तरफ ग्रुपिंग करना है. दो दो का ग्रुप जैसे पहले बनाया था हमने. पॉइंट से राइट में राइट की तरफ, पॉइंट से लेफ्ट में लेफ्ट की तरफ. इट्स वेरी इजी. ठीक है, so I'll write this, I'll draw this the long division square or whatever you can say, and 42.25 यहाँ पे 25 एक ग्रुप में, 42 एक ग्रुप में. ठीक है, चलो 42 पहला ग्रुप है, 42 से नज़दीक का परफेक्ट स्क्वायर, दैट इज 6 6 36. ठीक है, 42 माइनस 36 इज 6. अब पॉइंट के बाद का नंबर नीचे आएगा तो ऊपर पॉइंट डाल दो, बिकॉज यू आर टेकिंग द नंबर विच इज आफ्टर द पॉइंट, यू आर टेकिंग इट फॉरवर्ड, यू आर टेकिंग इट डाउन, सो पॉइंट डाल दो ऊपर. अब यहाँ पे 6 ऐड हो जाएगा, यू आर गोइंग टू गेट 12. 1 2 के आगे एक थर्ड नंबर लिखना है, सो दैट द प्रोडक्ट ऑफ दैट न्यू नंबर विथ इट सेल्फ गिव्स मी अ नंबर विच इज क्लोजर टू 625. So we know that 125 5s are 625, 125 5s are 625. ये subtract होगा, रिमाइंडर आ जाएगा 0. So therefore we can say that root of 42.25 is equal to 6.5. Simple, isn't it simple? Very easy, right? पॉइंट आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ पॉइंट के बाद वाला नंबर नीचे लेते हो तो क्वोशंट में पॉइंट डाल दो बस, बाकी सब कुछ सेम है. और ग्रुपिंग में थोड़ा ध्यान रखना है, यू टू बी केयरफुल while डूइंग द ग्रुपिंग. ओके, लेट्स डू द नेक्स्ट वन.
1.96 का रूट निकालना है मुझे, ठीक है। सो लॉन्ग डिवीजन 1.96, 96 एक ग्रुप में, 1 अकेला, 1 1 जा 1, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 1 ऐड हो जाएगा, 1 + 1 2 आ जाएगा, यहाँ पे 96 नीचे आएगा, 2 के आगे एक नंबर लिखना है और उसी को मल्टीप्लाई करना है उससे। सो 24 4 जा 96 होता है, मुझे पता है। तो 24, अच्छा 96 को नीचे लिया, ऊपर पॉइंट डालना मत भूलना। तो 24 4 जा 96, यहाँ पे 0 रिमाइंडर, देयरफॉर रूट ऑफ 1.96 इज इक्वल टू 1.4। सिंपल, प्लीज नोट इट डाउन। बहुत इजी है यार ये, आज चैप्टर खत्म है अपना। Okay, the next question. 6.4009. 6.4009. $6.4009. Arvi, can you please help me grouping? 09 Okay, 40 okay, 96. okay. राइट, सो ये बन गया 6.4009, 09 एक ग्रुप में, 406, 6 से नज़दीक और उससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर, 2 2 जा 4, ठीक है। यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे 2 आएगा, 40 को नीचे लेने से पहले ऊपर पॉइंट डाल दो, अब 40 को नीचे ले लो, यहाँ पे 2 + 2 4 डाल दो, 4 के आगे एक नंबर लिखो और 240 से नज़दीक पहुँचो। So I know 45 5s are 225 होता है, which is the closest. 45 5s are 225 ना, सही है ना? 45 5s are 225, which is the closest. ठीक है, इनको सब्ट्रैक्ट करो, आएगा 15, नीचे ले लो 09 को, यहाँ पे 5 ऐड कर दो, ये हो जाएगा 50, 50 के आगे एक नंबर लिखो और उससे उसी से मल्टीप्लाई करना है। तो 5033 जा, इजी है ये तो, है ना। 5033 जा, समझता है ना तुरंत। 5033 जा, 3 3 जा 9 और ये हो जाएगा 1509, बहुत इजी है। सो 503 3 जा 1509, डन। सो रूट ऑफ 6.4009 is 2.53. Simple. Easy. Are all of you comfortable with my speed? या मैं बहुत जल्दी फास्ट तो नहीं कर रहा हूँ? सही है ना? Because it's the same long division, only there is a decimal point introduced now. It's not a big deal. $0.4225. You all try this. 0.4225. Come on. Try करो. Yes, what is the answer? 0.65. 0.65. Very good. RV, did you get? No? Why? सर 0 आने की वजह से थोड़ा कंफ्यूजन। Okay, I will do it for you. 0.4225. Grouping. Okay, 0 आ गया, पहले ही 0 पॉइंट डाल दो, 42 से शुरुआत करो, 0 को लो ही मत, 42 से शुरुआत करो, ठीक है। 6 6 जा 36, 42 - 36 6, नीचे आएगा 25, यहाँ पे +6 हो जाएगा, नीचे आएगा 12, 125 5 जा 625,
यू आर डन. सो 0.4225 का रूट है 0.65. So you don't even consider 0. Okay, you directly start from 4225. Okay. The next question is evaluate root 2. Correct up to 2 places of decimals. Correct up to 2 places of decimals. Okay. So we have to find the value of root 2. Correct up to 2 places of decimal. Root 2 correct up to 2 places of decimal. सबसे पहले write 2.000000. See, if you want to find the answer of root 2 correct up to 2 places of decimal, you have to make 3 pairs of zeros after decimal point. 1 pair, 2 pair and 3 pair. 3 pairs of zeros. I'll tell you why we made 3 pairs of zeros. ठीक है? If they would have asked you correct up to 3 places of decimal, you would have taken 4 pairs of zeros. 4 pairs of zeros. Because they have asked you correct up to 2 places of decimal, you have taken 3 pairs of zeros. Now we will do the long division. We know root 2 का कोई रूट होता नहीं है, 2 का कोई रूट नहीं होता है, but at least whatever values up to 3 places of decimal we can get, we will get. So 1 1s are 1, माइनस होगा, यहाँ पे आएगा 1, 0 0 नीचे आएगा, यहाँ पे आएगा पॉइंट, प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 + 1 2 आएगा. 2 के आगे एक नंबर लिख के 100 से नज़दीक पहुँचना है. तो 24 4s are 96, 100 - 96 4, 2 0 नीचे, 24 + 4 28, 282 करेंगे, 282 2s are, तो 400 से बढ़ जाएगा नंबर, तो 281 1s are, 281 करेंगे. And here we'll get 9 1, and here also 1 119 119. 2 और 0 नीचे आएंगे, यहाँ पे 281 में 1 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 282. ठीक है, 282 के आगे एक नंबर ऐड करेंगे. ठीक है, I think it will be 2824 4s are. I want to reach closer to 11,900, because if I do 5s are, then it will be maybe greater than 11,900. So 4 4s are 16, 1 4 2s are 8, 8 + 1 9, 4 8s are 32, 3 4 2s are 8 + 3 11, 11,296. 2824 4s are 11296. If you subtract, the remainder will be here there will be 604. So as we predicted earlier कि remainder 0 नहीं आ रहा है. ठीक है, रूट 2 की जो वैल्यू है that is 1.414, और उसके बाद ऐसे डॉट 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 डाल दो, मतलब ये चलता ही जाएगा. This is a non-terminating, non-recurring decimal. You will study this in class 9th. Non-terminating, non-recurring decimal, root 2. But remember what they had asked you in the question. In question,
they asked you find the value of root 2 correct up to 2 places of decimal. Correct up to 2 places of decimal मतलब only up to here we have to find, only up to here. So what is this 4 for? ये 4 राउंडिंग ऑफ के लिए है. अगर यहाँ 4 ये जो थर्ड डेसिमल प्लेस है, 10th, 100th and 1000th डेसिमल प्लेस, उसमें 4 है. So if it in the place of 4 it would have been a number which is greater than 4, तो तुम उसको हटा के 1 में 1 ऐड कर देते. यू नो राउंडिंग ऑफ, राइट? सपोज अगर तुम्हारे पास होता 1.4, वेट, अगर तुम्हारे पास होता 1.416, नाउ दिस 6 इज ग्रेटर देन 5, तो तुम राउंड ऑफ कैसे करते? इसको राउंड ऑफ करके तुम लिखते 1.42. क्या किया मैंने? ये 6 के पहले वाले नंबर में 1 ऐड कर दिया. ठीक है. अगर मेरे पास होता 1.418, ये 8 5 से बड़ा है, तो इसको राउंड ऑफ करके मैं लिखता 1.42. दिस इज राउंडिंग ऑफ, दिस इज राउंडिंग ऑफ. मैं नंबर्स को राउंड ऑफ कर रहा हूँ. बट यहाँ पे मेरे पास 4 है विच इज स्मॉलर देन 5. 5 से छोटा नंबर है, तो इसको राउंड ऑफ कैसे करेंगे? डायरेक्टली विल राइट एज 1.41. दैट्स इट. विल नॉट ऐड 1 टू द प्रीवियस नंबर. इसके पहले वाले नंबर पे 1 ऐड नहीं करना है. ठीक है. सो दिस इज द मेथड ऑफ फाइंडिंग रूट 2 करेक्ट अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल. रूट 2 का वैल्यू क्या आएगा? 1.41. 1.41. दिस इज द फाइनल आंसर, रिमेंबर. Next question is 0.8 correct up to 2 places of decimal. चलो, ये तुम लोग की हेल्प चाहिए मुझे इसके लिए. 0.8. I have to find root of 0.8. Correct up to 2 places of decimal. Tanish, tell me, Tanish, how many zeros do I have to add in front of 8? How many pairs of zeros should I make? तो मैं यहाँ पे देखता हूँ मैं, ये मैंने क्यों 2 places of decimal लिया? See, I had 1 pair, 2 pair and 3 pairs of zeros. And for every 6 zeros. For every pair of zeros, there was one number which I got when I solved it. ठीक है? Yes, sir. For every pair of zero, there I got one number. Now I got 3 numbers in my answer. I rounded off the third one and I got my correct up to 2 decimal places as my final answer. अब यहाँ पे 0.8 मेरे पास ऑलरेडी है और मेरे को करेक्ट अप टू 2 places ऑफ डेसिमल आंसर चाहिए. सो आई वांट हाउ मेनी डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट सो दैट आई गेट 3 digits इन माय कोशेंट. पॉइंट के बाद कितनी डिजिट चाहिए मुझे? तो सर 6 digits चाहिए और ऑलरेडी मेरे पास 8 तो है, तो 8 के आगे कितने जीरो लगाऊंगा मैं? 6 नहीं, 5 zeros ना. 8 तो ऑलरेडी है. यस सर, 5 0. 1 2 3 4 5. 1 pair, 2 pair and 3 pairs. 3 pairs हो गई. अब मिल जाएगा हमें करेक्ट अप टू 3 decimal places. So 0.800000. Tell me, Tanish, how do I go ahead? So I'm getting disconnected as there's a lot of it. No problem. I'm recording. Don't worry about it. Yes, please. तनिष, कैसे शुरुआत करेंगे इसमें? पहले 0 point होगा तो क्या करते हैं? Sir, on the top we have to write 0. We have to write 0 point directly
and we have to start with the first first group after the decimal point. The 80. first group after decimal point is 80. 80. Yes. Hmm. Yes. तनिष, क्या करूं इस 80 का? 80 का क्या करूं मैं? क्या करते हैं हम लोग? तनिष, Yes, sir. प्लीज टेल मी, क्या करूं? 10 बार किया है लॉन्ग डिवीजन हमने, अभी तक तुम्हें नहीं पता क्या करना है, शुरुआत कैसे करनी है? ऑन योर कैंप. क्या करना है? I don't know, sir. सो यू वर स्लीपिंग क्या? अभी तक सो रहा था क्या तू? ये सब मैंने जो करा है, इतने सारे लॉन्ग डिवीजन, तेरे को पता नहीं कि अभी क्या करना है? ऐसा पैसिव होके कैसे बैठा रहता है यार तू? क्या करते हैं हम लोग? 80 से नजदीक और उससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर ढूंढते हैं कि नहीं? Yes, sir. तो क्यों नहीं बोल रहा है? ये कोई लेक्चर चल रहा है क्या? प्रवचन चल रहा है? भागवत गीता का प्रवचन चल रहा है क्या यहाँ पे? कि बस सुन लो पंडित जी को, चले जाएंगे पंडित जी, काम खत्म, घर पे जाओ सो जाओ, ऐसा थोड़ी चल रहा है यार. तुमको काम करना है ये सब. हाउ यू विल सॉल्व? आरवी, आरवी, तनुष, Sir, we'll take the closest square to 80. The closest closest and the perfect smallest. square. Closest and smaller, yeah. Which one is it? 864. 8 8s are 64. Okay. अब क्या करेंगे? Then we'll subtract it. What we'll get? 16. Here what we'll do? Bring down No. the zeros. Okay. What we will do over here in the divisor side? कल का वीडियो नहीं देखा ना, इसके लिए. राशि, Or we will add 8, okay, we'll get 16. 16, and then we will make a space for the other number. Third number, yes. What should be that number? We will do the 1600 less than, and it is a perfect square. So we will find out 169 into 9. Oh, okay. 169 nines are 9 nines are 81. 8. 1521. Oh, you've already found. 6 nines are 54. 54 plus 8 is 62. And this is 1521. Correct? 169 nines are 1521. Yeah. What we'll get over here? 79. 29. And we will take the both Two zeros zeros. down. So on the divisor side we will plus 9, Mm-hmm. 178, Okay. and 178, and we will make a space. Mm-hmm. After that we will find a 7900 less than, so 1784 into 4 Hmm. Even is I was equal to thinking that. 7136. 71336, correct. We 1784. will subtract
Fours by are? 7900. So the answer is 764. Okay, and here we'll add 4 just for the 1788. Cool. Okay, so we know now कि ये तो आगे चलता ही रहेगा because this is a not a perfect square 0.8. ठीक है, so we know that square root of 0.8 is 0.894 on and on and on, non terminating non recurring decimal. ठीक है, now how we will round off? Correct up to 2 decimal place ढूंढना था मुझे. Correct up to 2 decimal place. How do you tell me to round it off? Come on, tell me. ये नंबर 5 या 5 से छोटा है तो सीधा हटा दो उसको, सीधा हटा दो, कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं. तो ये तो 4 है तो डायरेक्ट आंसर आएगा 0.89. अगर वो नंबर 5 या 5 से बड़ा होता तो उसको हटा के हमें 9 में और एक 1 ऐड करना पड़ता, मतलब 89 की जगह 90 आ जाता. बट वो नंबर 4 है, 5 से छोटा है, मतलब उसको डायरेक्ट हटा सकते हैं हम लोग. ठीक है, सो इट इज़ करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस. द वैल्यू ऑफ 0.8 इज 0.89. 0.89. and the answer is correct. ठीक है, 3f भी हो गया. अब आते हैं स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शंस पे. फ्रैक्शन का स्क्वायर रूट कैसे लेना है, बहुत इजी है. सिर्फ ये दो लॉस तुम्हें याद रखना है, ये फर्स्ट और सेकंड, वो मैं तुम्हें अप्लाई करके बताऊंगा. ठीक है, इसमें कितने क्वेश्चन है देखते हैं. 1 2 3 4 4 क्वेश्चन है सिर्फ और चैप्टर खत्म. ठीक है, रूट ऑफ 441 अपॉन 961. बहुत इजी है. सपोज ऐसा क्वेश्चन आता है, रूट ऑफ 441 अपॉन 961. सो हाउ यू विल सॉल्व इट? डोंट एवर कन्वर्ट दिस इनटू डेसिमल्स. 441 डिवाइड बाय 961 मत करने बैठ जाना. इसका सिंपल हिसाब है, रूट ऑफ 441 करो अपॉन रूट ऑफ 961 करो. 441 का रूट हमें पता है कैसे ढूंढना है, 21 है. लॉन्ग डिवीजन से ढूंढो, प्राइम फैक्टराइजेशन से. 21 है 441 का रूट. और 961 किसका रूट है? 31 का. 961 का रूट 31 है. ठीक है, सो फाइनल आंसर इज 21/31. आई एम नॉट शोइंग यू कि इसका रूट कैसे ढूंढना है. यू डू प्राइम फैक्टराइजेशन, यू डू लॉन्ग डिवीजन, इट्स योर प्रॉब्लम. ठीक है, तुम्हें डायरेक्ट आंसर इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज आई एम टेलिंग यू कि इसके स्टेप्स क्या है ढूंढने के. ठीक है, यू जस्ट फाइंड द रूट ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली एंड राइट इट एज अ फ्रैक्शन. दैट्स योर आंसर. यहाँ पे तुम्हारा आंसर आ जाता है. इससे आगे कुछ नहीं करना है, छोड़ दो इसको. ठीक है, डेसिमल में भी लाने की ज़रूरत नहीं है. रिमेंबर दैट. दिस इज ईजी एक्चुअली, वेरी ईजी. गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 156/169. 156/169. ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट करेंगे. इसका रूट ढूंढना है मुझे. ठीक है, सो 169 1 ज़ा 169. 169 प्लस 56 कितना होता है? 225. राइट, 225. सो ये हो जाएगा 225 अपॉन 169. बहुत इजी है ये. ये तो हो जाएगा रूट ऑफ 225 अपॉन रूट ऑफ 169. बताओ रूट ऑफ 225 कितना है? लर्न तो हो गया होगा अब तक. नहीं, रूट ऑफ 225 is 15
169 is 30. And how to convert it into mixed fraction? 1 2 by 30. Correct. So this is your final square root. The square root of 156 by 169 is 1 2 by 13. Orally हो गया ये, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इसमें. This is simplest part of the whole chapter. If you know the square roots orally only then. मैंने day 1 में बोला था कि 1 से 20 तक के स्क्वायर याद करो. 1 से 30 तक के भी बोले थे मैंने. बट अगर तुम मेरी इंस्ट्रक्शन फॉलो करोगे तो ईजी है, नहीं तो फिर बैठे रहोगे. नेक्स्ट, square root of 243 by square root of 363. Okay, square root of 243 by square root of 363. अब देखो यहाँ पे पहले ही आके कंफ्यूजन होता है कि यार 243 तो किसी का स्क्वायर रूट नहीं है, 15 का स्क्वायर 225 है, 16 का स्क्वायर 256 है, 243 तो किसी का नहीं है, 363 भी किसी का नहीं है, 19 का 371 है, 20 का 400 है, 18 का 324 है स्क्वायर, 363 किसी का स्क्वायर नहीं है. तो ये कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको सॉल्व करने का टेक्निक देखो थोड़ा सा अलग है. पहले इसको ऐसे लिखो 243 अपॉन 363 द होल अंडर रूट. अब तुम अगर ध्यान से देखोगे दोनों 3 से डिविजिबल है. इसको 3 से कट करो, 3 81 जा, 3 121 जा, 3 से कट कर दिया. अब इसको रूट में लिख दो वापस, रूट ऑफ 81 अपॉन रूट ऑफ 121. अब 81 किसका रूट है? 9 का. मतलब 81 का रूट क्या है और 121 का रूट क्या है? 11. 9 by 11 इज योर फाइनल आंसर. सिंप्लीफाई करना था तुम्हें सिर्फ, यू जस्ट हैड टू सिंप्लीफाई इट. ऐसे क्वेश्चन है लास्ट एक्सरसाइज में, प्लीज डोंट मेक एनी मिस्टेक्स देयर. रूट 45 टाइम्स रूट 20, उसकी वैल्यू ढूंढनी है. रूट 45 टाइम्स रूट 20, इसकी वैल्यू ढूंढनी है. बहुत इजी है. इसको लिखो रूट ऑफ 45 टाइम्स 20, दैट इज रूट ऑफ 900, दैट इज 30. खत्म. तुम सोचोगे 45 तो किसी का रूट नहीं है, 20 किसी का रूट नहीं है, लेकिन साथ में लाओ ना, बीच में मल्टीप्लिकेशन है और एक सिंगल रूट बना दो. 45 20 को मल्टीप्लाई करो, अंदर 900 आएगा, उसका रूट ले लो 30. 900 का रूट 30 है. That was the last question of the chapter. We have finished square and square roots, the huge chapter. 5 पार्ट है इसमें. पहला चैप्टर भी बड़ा था, सेकंड भी बड़ा है. अभी नेक्स्ट हमें एक्सपोनेंट्स करना है. आई थिंक किसी के स्कूल में स्टार्ट किया ना एक्सपोनेंट्स? ओके, एपीजे में स्टार्ट किया है तो वो करना है. तनिष, यू आर इन विच स्कूल? Sir, Green Finger Global School. And how many chapters are completed? Sir, फर्स्ट चैप्टर अभी खत्म हुआ. ओहो, मतलब इससे पहले, हॉलीडेज से पहले. तो हमारे 2 हो गए और हम और एक करेंगे एक्सपोनेंट्स. और साइंस में कितने हुए खत्म स्कूल में? और फोर्स एंड प्रेशर्स के नोट आ गए, नोट्स मतलब आ गए. अच्छा, आधा मतलब हो गया चैप्टर स्कूल में. ओके. एंड ग्रीन फिंगर्स में कितने हुए? सर 2 हो गए. कौन से 2? कौन से 2? विच 2? फर्स्ट और सेकंड सर दोनों हो गए.
फर्स्ट और सेकंड नाम नहीं याद, मतलब फर्स्ट और सेकंड कौन से है मुझे नाम नहीं पता। क्रॉप प्रोडक्शन फर्स्ट है। हाँ फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वाला है। हाँ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पे भी हो गए ना तुम्हारे, मैम ने करवा दिए ना ये दोनों। हाँ Yes, sir. हाँ और मैंने सिंथेटिक फाइबर अलग से करवाया, और मैं अभी एक ही करवाया ना मैंने अभी तक, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक, और मैं एक करवाने वाला हूँ, दैट इज़ फोर्स एंड प्रेशर। ठीक है, सही जा रहे हैं हम लोग। अभी स्कूल में कुछ अलग स्टार्ट करेंगे तो पता नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से तो सिलेबस ठीक जा रहा है। ओके, सो लेट मी जस्ट शो यू व्हाट इज़ द होमवर्क आई विल सेंड यू। सो 3G एक्सरसाइज है लास्ट, 3H ऑब्जेक्टिव है, वो नहीं करना है, मैं 3G तक भेजूंगा तुम्हें। एंड उससे पहले 3F है, और उससे पहले 3E में क्वेश्चन नंबर 13 से लेके 19 तक जो हमारा बचा था, ये 3E तो है तुम्हारे पास ऑलरेडी, इसमें 13 to 19 तुम्हें करना है, और आगे 2 एक्सरसाइजेज है, ये भी भेज देता हूँ, ये भी कंप्लीट करना है। एंड दिस हैज़ टू बी सबमिटेड बिफोर नेक्स्ट वीक्स लेक्चर। और नेक्स्ट वीक में इस चैप्टर की टेस्ट होगी, पूरे चैप्टर की एक साथ, तो उसके लिए प्रिपेयर रहो, ये टफ होगी टेस्ट। ठीक है, थोड़ा सा मोटिवेटेड रहो मैथ्स को लेके, तुम्हारा एटीट्यूड बहुत ढीला है मैथ्स को लेके। ठीक है, मुझे सिर्फ यहाँ पे एक ही स्टूडेंट है जिसका होमवर्क बिल्कुल टाइम टू टाइम आता है, राशि का, बिल्कुल टाइम टू टाइम, अप टू डेट, प्रॉपरली कंप्लीटेड, एक भी सम यहाँ से वहाँ नहीं होता। यस राशि। और एक्चुअली हमारे स्कूल का मैथ्स का हॉलीडे होमवर्क आ चुका है। ओके, तो सर हमारी मैम ने बोला है कि हम लोग को रियल लाइफ सिचुएशन के ऊपर हमें एक क्वेश्चंस बनाना है